suppose this is scrotal bag, okay, and we know that here is a cavity. The opening of this bag is called inguinal canal, and we know that the inguinal canal is the opening and the roofing section of our scrotal bag. And there are two cases. First one is if it is open and if it's closed. So, the condition when it is open, this should be called diseased condition. So, it is very dangerous and harmful for the person, and if it's closed, then it should be normal. This should be normal for the persons. So, inguinal canal is the opening section of scrotal bag, which is normally should be closed. Okay. And the next thing is, when we observe this structure, we can see some specific layers inside of this structure, and these layers are these layers. Here we can see the another layer like this. Let us a quick revision, then we will move towards the next topic. This and then this. So, here we can see some specific cells also. These are the cells. So, this is the structure. So, guys, as we know that these structures are the outermost section is skin, then Daltos muscle and clemustrid. We know that these both muscles are helpful in maintaining of temperature. So, they can regulate the temperature. Lower next thing is skin, Daltos muscle, clemustrid, and it maintains the temperature. Now, what is next? Guys, here we can see some specific fat cells. When we observe this structure, we can see some fat here also. So, it also work as a insulator. So, it is an important structure. So, this is the basic concept. Now, what is next? When we observe this structure, we can see a wall at the mid of scrotal bag. This wall is basically called septi scrotal, septi scrotal और scrotal wall भी कहते हैं. This is also called scrotal wall. So, septi scrotal or scrotal wall, it differentiate the scrotum into right and left sections. Now, what is next? Is it clear? Then we will move towards the next section. Tell me, guys, is it clear? Okay. So, let us move towards the next page. Okay. So, again this is scrotal bag, this is the wall, this is the inguinal canal. What is next? Here we can see testis.
two testes are here, right and left. Now testis is connected with a specific ligamentous structure. The connective structure is here, which can attach the testis with scrotal bag. So guys, this structure which attach the testis with scrotal bag, this structure is called, it is a connective tissue. This is the connective tissue, and this structure is called gubernaculum or mesorchium. Gubernaculum or mesorchium. So this is the structure, gubernaculum or mesorchium. Okay, so gubernaculum is the structure. I am here on your comment box. So is it clear? Okay, तो भाई सबको यहाँ तक क्लियर है. तो मेसोर्चियम एंड गुबर्नाकुलम आर द स्ट्रक्चर्स विच कनेक्ट दिस टेस्टिस with scrotal bag. Okay, now the question is, this testis is living or dead? The testis is basically living or dead? Can you tell me the answer? The testis is living or dead? ये testis जो है वो जिंदा है या dead है? What is the answer? What is the answer? टेस्टिस क्या है? जिंदा है? जल्दी से बताओ बच्चे, सभी बच्चे जल्दी से बताओ. ओके, गणेश वर्मा की जो आईडी है वो मयंक की है. मयंक तुम्हारी तो अपनी आईडी थी ना? ओके, तो सबका आंसर आ गया भाई, लिविंग है. ओके, सो जब टेस्टिस लिविंग है तो इट नीड्स सम न्यूट्रिशन and it also perform some process of excretion also. So here we can see some specific tubules. First red vessel, then blue vessel, and then green vessel. देखो मैंने तीन अलग अलग नसें वेसल्स जो हैं वो तीन अलग अलग कलर से बनाई हैं. इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न बहुत बड़ा है. हम लोगों ने पढ़ा है ना कि रेड से हम लोग किसको दिखाते हैं हमेशा? आर्टरी को. तो हियर आर्टरी. ब्लू से क्या दिखाएंगे? वेन्स. और ग्रीन से क्या दिखाएंगे? नर्व. सो आर्टरी, वेन्स एंड नर्व. Some specific artery, veins and nerves are here attached with testis, which can provide nutritional substances and which can receive the harmful substances from the testis. So this should be called testicular artery, testicular artery. Actually it should be called right testicular artery, RIGHT. Okay, तो बेसिक कॉन्सेप्ट, द कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल. जो भी हम लोग यहाँ पे राइट में देख रहे हैं वो राइट साइड होगा और सेम चीज यहाँ पे लेफ्ट में होगा. तो उन सब के आगे हम लगा देंगे लेफ्ट. जैसे एप्पल पढ़ा तो राइट एप्पल, लेफ्ट एप्पल, यानी कि टेस्टिकुलर आर्टरी पढ़ी तो राइट टेस्टिकुलर आर्टरी एंड लेफ्ट टेस्टिकुलर आर्टरी एज सेम. So right testicular vein and right testicular nerve. पहले मुझे बताओ यहां तक सबको समझ में आ गया कि नहीं?
तो मैंने अभी बताया कि जो टेस्टिस चूंकि जिंदा है भाई, ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये जिंदा है, तो इसको न्यूट्रिशन देना पड़ेगा ना। तो उसको देने के लिए यहाँ पे एक नस आ रही है, आर्टरी आ रही है जो कि प्योर ब्लड सप्लाई देगी, वेन्स आ रहे हैं जो कि इम्प्योर ब्लड का सप्लीशन करेंगे, और नर्व आ रहे हैं जो कि सेंसेस चेक करेंगे भाई ये किस मूड में है, हैप्पी है, सैड है, इसको कैसा न्यूट्रिशन चाहिए, नहीं चाहिए, है ना। तो इन सारी चीज़ों को देखने सुनने के लिए दे हैव स्पेसिफिक स्ट्रक्चर एंड दैट स्ट्रक्चर्स आर टेस्टिकुलर आर्टरी, टेस्टिकुलर वेन एंड टेस्टिकुलर नर्व। ओके, तो ये राइट साइड है तो राइट साइड हो जाएगा। ओके, चलो गुड इवनिंग खुशी। अरे चलो कोई बात नहीं है। मयंक, खुशी, आस्था, मयंक, परी, तो यहां तक हम लोग समझ गए। अब आगे चलते हैं, जरा ध्यान से सुनना सभी लोग। एज सेम यहाँ पे भी होगा, तो अलग अलग कलर से क्या बनाना है यहाँ पे तो देख ही लिया है, मैं खाली नाम लिख देता हूँ। तो यहाँ पे तुम्हें क्या मिलेगा, लेफ्ट टेस्टिकुलर आर्टरी, इसी तरह से एज सेम लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन्स एंड लेफ्ट टेस्टिकुलर नर्व। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझना। तुमने कई बार कुछ वायर्स देखी होंगी, उस वायर में क्या होता है कि ऊपर एक वाइट कलर की कवरिंग होती है, उसको हटाओ तो अंदर से ऐसे कलरफुल वायर्स निकलते हैं, लाल, हरा, नीला, पीला होता है ना। तो उस पूरा बंडल होता है वो वायर का, वायर बंडल। एज सेम these all structures are combined together and form a bundle which appears as a single bundle, single structure, and when we dissect those structure we can see these tripled structure like arteries, veins and nerves। मतलब कि इसको जब काटोगे ना तो ये तीन चीजें दिखेंगी। बेसिकली ये तीनों आपस में कंबाइन होके एक सिंगल बंडल के रूप में दिखाई देते हैं। तो पेपर में पूछता है, ओके मैं कमेंट में देख रहा हूँ सबको क्लियर होते जा रहा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और जब क्लियर भी होते जाए तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके लाइक से हम सबको एनर्जी आती है, सारे टीचर्स को मज़ा भी आता है। तो भाई ये जो स्ट्रक्चर है इसके ऊपर एक ऐसे ऐसे बंडलिंग होती है, पूरा कंबाइन हो जाता है ताकि ये सिंगल वायर के रूप में चले, ताकि कोई प्रॉब्लमेटिक सिस्टम ना हो। तो ये पूरा स्ट्रक्चर आपस में ऐसे ऐसे कंबाइन होके निकल रहा है। तो ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन है ना, ये जो कॉम्बिनेशन है आर्टरी, वेन्स और नर्व का, इसको हम बोलते हैं, यहां पे लिख रहा हूं, स्पर्मेटिड कॉर्ड। चूंकि ये राइट साइड है तो इसको हम बोलेंगे राइट स्पर्मेटिड कॉर्ड। क्या बोलेंगे, राइट स्पर्मेटिड कॉर्ड, एज यहां पे लेफ्ट स्पर्मेटिड कॉर्ड। तो बेसिकली हमें टेस्टिस में बेसिकली जो है वो स्पर्मेटिड कॉर्ड ही देखने को मिलता है। वी कैन इजिली सी स्पर्मेटिड कॉर्ड इन अ टेस्टिस like this, and when we dissect the spermatid cord we can see the three structures like this, like arteries, veins and nerves. So guys, you can take a screenshot or you can note these things in your copy, then we will move further, okay, and tell me is it clear or not, then we will move. Is it clear? Then you can write clear sir, okay। सबको समझ में आ गया है? मैंने क्या क्या बता दिया सबको अच्छे से? चलो सभी लोगों को समझ में आ गया? हाँ मैंने माउथ ही बनाया है। चलो बच्चों, तो सबको क्लियर है, सबने कर लिया।
तो हमने सीखा कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर, इसमें बेसिक्स क्या क्या होते हैं, यहाँ तक बेसिक्स सबको समझा दिया। इंग्विनल कैनाल की कहानी बता दी, देन ओपन होता है कि क्लोज होता है ना। अभी जैसे मान लो ये ओपन रह गया, तो ओपन रह गया तो इसके अंदर से मटेरियल डाउनवर्ड चला जाएगा। जब इसके अंदर से मटेरियल डाउनवर्ड जाएगा तो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, तो उसको हॉर्निया कहते हैं, है ना। हार्निया बीमारी होती है, सुना होगा, तो कई पेशेंट्स आते हैं उसके। खैर वो सब तो मेडिकल की बातें हैं, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है, जानकारी रखो खाली। तो डिजीज्ड हो जाएगा, ये याद रखना है। क्लोज होना चाहिए ताकि ये क्या रहे, नॉर्मल रहे। फैट होता है ताकि क्या कर सके, इंसुलेशन, है ना। वॉल के बारे में जान लो, ये अच्छा है, जानना बहुत ज़रूरी है। स्किन बता दिया, मसल्स बता दिए। नेक्स्ट बता दिया कि जो टेस्टिस है वो किसके साथ अटैच्ड है, गुबरनाकुलम के साथ। मेरे साथ अगर तुम भी बोलोगे ना अपने घर पे तो तुम्हें याद हो जाएगा। बायोलॉजी नाम का ही खेल है, नाम ही नाम है, केवल नाम ही नाम है, और जिसको नाम याद हो जाए वो बायो। और क्या होता है इसमें, नाम ही तो होता है। फिर कनेक्टिव टिश्यू जिसको गुबरनाकुलम या मेसोर्चियम कहते हैं, और स्पर्मेटिड कॉर्ड, लाइट और लेफ्ट, ठीक है। तो लेफ्ट टेस्टिकुलर और राइट टेस्टिकुलर, आर्टरीज, वेन्स और नर्व। एक बार पेपर में क्वेश्चन था, मैंने देखा था, मेडिकल का ही पेपर था। क्वेश्चन था कि टेस्टिकुलर स्पर्मेटिड कॉर्ड कंसिस्ट, स्पर्मेटिड कॉर्ड में क्या होता है। ऑप्शंस थे आपके, टेस्टिकुलर आर्टरी, टेस्टिकुलर नर्व, टेस्टिकुलर वेन्स। सही ऑप्शन क्या होगा भाई, स्पर्मेटिड कॉर्ड में क्या पाया जाता है, सही ऑप्शन क्या होगा बताओ। व्हाट इज द राइट आंसर। टेस्टिकुलर आर्टरी पाई जाती है कि वेन्स पाए जाते हैं कि नर्व पाए जाते हैं, बताइए। तो आंसर इसका ये है, ऑल ऑफ दीज, लगभग सारी चीजें, तीनों ही पाई जाएंगी, देख ही रहे हैं सामने। चलो भाई, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले टेस्टिस के बारे में। तो अगला पॉइंट है टेस्टिस, द नेक्स्ट पॉइंट इज टेस्टिस। अब एग्जैक्ट टेस्टिस को पढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहानी है इस टेस्टिस का। तो टेस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कह रहा है, टेस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है वो कह रहा है कि व्हेन वी ऑब्जर्व द टेस्टिस, लेट अस सपोज दिस इज द टेस्टिस, ओव्यूलर शेप, 2 to 5 centimeter, 4 to 5 centimeter. This is the testis, and when you observe the testis you can see some specific structures here. Let us see some this specific structure. Here we can see the surroundings, a pinkish surrounding, this is the dual layer membrane which can surround the testis. अब जब स्कूल में जाओगे ना तो आपको डिसेक्शन करके दिखाया जाता है, बहुत सारे स्कूलों में कराते हैं, तो वहाँ पे ऐसे डिसेक्शन करके टेस्टिस के अंदर दिखाते हैं क्या क्या होता है। तो दिस इज द थिंग, एंड अगेन व्हेन यू सी द इनर सेक्शन ऑफ द टेस्टिस, जस्ट आफ्टर दिस पिंकिश स्ट्रक्चर you can see some whitish layer, and that's why the testis just appears like an egg. बिल्कुल एक अंडे जैसा ये तुम्हें दिखाई देगा। तो पहले बाहर में ये 2 लेयर्स ही होती हैं, अंदर में और भी लेयर हैं, वो आगे देखेंगे। तो ये जो 2 लेयर्स हैं इनको देखते हैं पहले। The outermost layer, this layer is called tunica vaginalis.
अब देखो ये क्वेश्चन पेपर में आया कि द लेयर ट्यूनिका वजाइनलिस इज रिलेटेड विद, ऑप्शन था मेल स्ट्रक्चर, फीमेल स्ट्रक्चर। तो कई ऐसे स्टूडेंट्स थे जो बेसिकली फीमेल स्ट्रक्चर लगा दी, क्योंकि जो नाम है ना, देखो ये नाम सुन के ऐसा लग रहा है कि फीमेल स्ट्रक्चर है, वजाइनलिस लिखा हुआ है ना। तो ऐसा नहीं ध्यान रखना है, याद रखना है कि कोई भी स्ट्रक्चर कहीं भी हो सकता है। तो इसका नाम फीमेल जैसा है वजाइनलिस, लेकिन ये ध्यान रखना है कि इट इज एसोसिएटेड विद मेल स्ट्रक्चर, इट इज द कवरिंग ऑफ टेस्टिस, है ना। एंड एक्चुअली इट इज अ डुअल कवरिंग, द फर्स्ट लेयर एंड देन सेकेंड लेयर। द फर्स्ट लेयर इज कॉल्ड parietal tunica vaginalis, and the second layer is called visceral tunica vaginalis. So parietal और विसरल, ठीक। अब भाई ये तो जिसने डिस्कवर किया उसे पता होगा ना किस तरीके से किस खोजा। अब आम को आम क्यों कहते हैं, एप्पल को एप्पल क्यों कहते हैं? आम को संतरा बोल सकते थे, तो हम सब आम को संतरा बोलते है ना। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट, दिस इज ट्यूनिका वजाइनलिस, ठीक है बेटा। So two layers are, first layer is parietal, that is the thing, the outermost layer is always called parietal layer, and then visceral layer. So parietal tunica vaginalis, then visceral tunica vaginalis. And the next layer which is present here, this whitish layer is called tunica albugenia. So tunica albugenia is the whitish layer, which is the inner layer, and it consists albumin. ऐसा कई बार पूछा जाता है पेपर में, तो जान लो थोड़ा सा। ये एल्बुमिन इनरिच होता है, और एल्बुमिन की वजह से ये वाइटिस कलर में दिखाई देता है। अंडे का जो वाइट पार्ट है वो भी वाइट होता है, उसमें भी एल्बुमिन होता है ना। चलो, तो यहाँ तक सबने नोट कर लिया, ट्यूनिका वजाइनलिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, पैराइटल एंड विसरल। और क्या मिलेगा भाई? और हमें एक सबसे अच्छी चीज मिलेगी यहाँ पे, यहाँ से कौन निकल के जा रहा है? स्पर्मेटिड कॉर्ड। अब अगर ये राइट टेस्टिस है तो ये राइट हो जाएगा, लेफ्ट टेस्टिस है तो ये लेफ्ट हो जाएगा। तो स्पर्मेटिड कॉर्ड यहाँ से आउट होता है, और उसके बाद ये दो लेयर और फिर एक एल्बुजिनिया। इतना पक्का हो गया? सबको समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। यहां तक सबको समझ में आ गया? पहले यस सर बताओ, फिर मैं आगे चलूं। जल्दी से बताओ, सबको समझ में आ गया है तो बता दो बच्चों। यू कैन राइट हियर यस सर, देन वी विल मूव, and you can take a screenshot and you can also end a small compartment. ओके तो ये वॉल ने इसको एक लार्ज और एक स्मॉल में पार्ट दिया, और दिस वॉल इज कॉल्ड mediastinum, basically mediastinum, or it is also called testicular septi. Testicular septi. So mediastinum wall, basically it is a wall like structure which can differentiate the testis into large and small compartment.
and when you move inside of this compartment you can see the different structures. What? Inside of this small compartment you can see the duct system. We will talk about the duct system, okay? And when you see the large compartment you can see some specific structures which is called testicular lobes. So this is an important question. कई बार पेपर में ऐसा पूछता है कि डक्ट सिस्टम किस साइड पाया जाता है. तो डक्ट सिस्टम पाया जाता है स्मॉल कंपार्टमेंट में, ठीक है, और लार्ज कंपार्टमेंट में पाया जाता है टेस्टिकुलर लोब. तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, ठीक. स्मॉल कंपार्टमेंट में क्या पाया जाएगा? डक्ट सिस्टम. और लार्ज कंपार्टमेंट में क्या पाया जाएगा? टेस्टिकुलर लोब्स. एक और चीज जरा ध्यान देना, हाउ मेनी टेस्टिकुलर लोब्स? हाउ मेनी टेस्टिकुलर लोब्स? चलो बताओ जल्दी से, कितने टेस्टिकुलर लोब्स पाए जाते हैं? बेसिकली 250 से 300 के आसपास, 250 से 300 टेस्टिकुलर लोब्स जो है वो पाए जाते हैं. तो 250 से 300 की संख्या होती है इसकी. बेसिकली 250 से 300 नंबर्स. दिस इज दिस, ओके. सो व्हेन वी ऑब्जर्व दिस स्ट्रक्चर, लेट अस सी सम इनसाइड, लेट अस मूव इनसाइड ऑफ दिस लार्ज कंपार्टमेंट. Guys, when we observe this testis and when we move inside of this compartment, we can see the lobules like this. Here we can see this type of the lobules and these are called testicular lobules. इसको हम बोलते हैं testicular lobules. अब ये जो testicular lobules है ना, यही 250 से 300 तक हो सकता है. 250 to 300. अब सारा 300 गिन के तो कोई बनाता नहीं है, तो बेसिकली जान लेना है कि 250 से 300 तक ये होता है. और इसके ऊपर भी एक लेयर पाई जाती है, इसके ऊपर भी एक कवरिंग पाई जाती है. 2 कवरिंग तो बाहर दिखाया वो वाला, एक इस लोब्यूल्स के ऊपर भी कवरिंग होती है. लोब्यूल्स के ऊपर भी कवरिंग होती है, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे. पूरे पे ऐसे 250 के ऊपर होता है. मैं थोड़ा बना के बता दे रहा हूं. इस कवरिंग को हम बोलते हैं ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा. तो ऐसा कई बार पूछा जाता है. तो हमने अब तक कौन कौन से लेयर पढ़ ली? एक पढ़ लिया ट्यूनिका वजाइनेलिस, एक पढ़ लिया ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, और एक पढ़ लिया ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा. तो these 3 structures are the very important structure in our testis. ठीक है. तो बच्चों ये बात याद रखना सभी लोग
कि टेस्टिस का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। यहां तक सबको समझ में आ गया? नोट्स तुम लोग बनाते हो? मैं चेक करूंगा नोट्स, टेंशन मत लेना। जिस दिन चेक करूंगा उस दिन पता चलेगा कौन बना रहा है कौन नहीं बना रहा है ना? नोट्स भी चेक किए जाएंगे। अब ये जो 250 से 300 तक हम लोग देख पा रहे हैं टेस्टिकुलर लोब्स, ये टेस्टिकुलर लोब्स बेसिकली ब्लाइंड ट्यूब्स हैं। क्या हैं? ब्लाइंड ट्यूब्स। क्यों बोलते हैं जरा बताओ जल्दी से? ब्लाइंड ट्यूब। दिस टेस्टिकुलर लोब्स आर बेसिकली कॉल्ड ब्लाइंड ट्यूब। कई बार हमने एग्जामिनेशन के पेपर में जब मैं देखा तो मैंने देखा कि वहां पे पूछा है हाउ मेनी ब्लाइंड ट्यूब्स आर प्रेजेंट इन अ टेस्टिस। अब बच्चे परेशान कि हम ये तो कभी पढ़े नहीं, ब्लाइंड ट्यूब क्या है भाई, कहां से पूछ दिया ये सब। ये ब्लाइंड ट्यूब इसी को बोलते हैं। क्यों? हम लोग जब स्कूलों में थे तो स्कूलों में नहीं ऐसे एक टेस्ट ट्यूब मिलता था, तुम लोगों को याद है? केमिस्ट्री लैब में, बायो में टेस्ट ट्यूब मिलता है। अब ये जब देखोगे तो इसमें सिंगल ओपनिंग होती है, नीचे से क्या है? पैक। तो कोई ऐसा ट्यूब जो एक साइड से ओपन हो और दूसरे साइड से क्या हो जाए? बंद। एक साइड से ओपन हो दूसरे साइड से क्या हो? बंद। वन साइडेड ओपन ट्यूब्स आर बेसिकली कॉल्ड ब्लाइंड ट्यूब्स। वन साइडेड ओपन ट्यूब्स आर बेसिकली कॉल्ड ब्लाइंड ट्यूब्स। तो जो ये वन साइडेड ओपन ट्यूब्स है ना, इन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं? ब्लाइंड ट्यूब्स बोल रहे हैं। तो ये ब्लाइंड ट्यूब्स हैं, एक साइड से ओपन है, एक साइड से पीछे से क्या है? ये पूरी तरह से बंद है। अब ये जो ओपन है ना, ये सामने ऐसे करके खुलता है, ये सब ऐसे ऐसे सिंगल सिंगल खुलेंगे। जैसे क्या होता है, अलग अलग डक्ट फिर सब आपस में ऐसे ऐसे कनेक्ट हो जाएंगे, है ना, और कनेक्ट होके एक सिंगल ओपनिंग जनरेट कर लेंगे और फिर ये ओपनिंग आगे बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी वो आगे की बातचीत। तो इसलिए यहाँ पे बहुत सारे डक्ट्स आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, सो दैट इट शुड बी कॉल्ड डक्ट सिस्टम। We will talk about the duct system. What are the structures present in duct system? Okay, so these are the duct system which are present inside of this structure. This is the duct system, and here we can see the blind tubes which are 250 to 300 in number, and they are surrounded with tunica vasculosa. Okay, let us take a quick recap of these topics, then we will move towards the next structure. So first, सबसे पहले आपको क्या बता दिया कि स्क्रॉटल का जो स्ट्रक्चर होता है, ये देखो एकदम रटा होना चाहिए, ये सारी चीजें एकदम अच्छे से टंग पे होनी चाहिए। किसी ने आपसे कहा और आप फटाक फटाक बताने शुरू हो जाओ, एक भी % का इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो आपको बता दिया कि ये स्ट्रक्चर होता है जिसमें जो बाहर की तरफ स्किन होती है, फिर मसल्स होते हैं जो टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं, फिर अंदर में एक वॉल होती है जिसका नाम स्क्रॉटल वॉल है, फिर ऊपर की कैविटी जो होती है उसको इंग्विनल कैनाल बोलते हैं। इंग्विनल कैनाल बेसिकली क्लोज होनी चाहिए। फिर हम लोगों ने आगे बात किया कि जो टेस्टिस होता है वो बेसिकली किसी स्ट्रक्चर पे कनेक्टेड होता है जो कि कनेक्टिव टिश्यू होती है। फिर इसमें कुछ आर्टरीज, वेन्स और नर्व्स होती हैं जो आपस में कनेक्ट होकर के टेस्टिकुलर लोब्स यानी कि स्पर्मेटिड कॉर्ड का कॉम्बिनेशन तैयार करती हैं। और ये स्पर्मेटिड कॉर्ड राइट एंड लेफ्ट में स्ट्रक्चराइज्ड होते हैं, राइट स्पर्मेटिड कॉर्ड एंड लेफ्ट स्पर्मेटिड कॉर्ड, बेसिकली ऐसे ही होता है। और ये इसी टेस्टिस को सारा न्यूट्रिशन देते हैं। अगर ये सब सही से काम न करें तो टेस्टिस क्या हो जाएगा? जिंदा है तो क्या हो जाएगा? मर जाएगा, है ना। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अच्छा, इसके बाद बताया कि जो टेस्टिस होती है उसके ऊपर 2 लेयर्स हैं, एक तो ट्यूनिका वजाइनैलिस की पैराइटल और विसरल, फिर एल्बुजिनिया जिसमें एल्बुमिन पाया जाता है। फिर बताया कि एक वॉल होती है जिसको मीडियास्टिनम कहते हैं और यहीं से स्पर्मेटिड कॉर्ड ओरिजिनेट करेगा। एंड बेसिकली इट कैन डिवाइड द 2 सेक्शंस, द लार्ज कंपार्टमेंट एंड द स्मॉल कंपार्टमेंट। And this large compartment consists testicular lobes. There were 250 to 300 testicular lobes
while small compartment shows duct system, and then this structure consists a lot of testicular lobes which is surrounded with tunica vasculosa, and this is also told as blind tube. Okay, so there are three layers like tunica vaginalis, tunica albuginea and tunica vasculosa. So guys, the time is over. आज का समय हो गया समाप्त. कल की क्लास में इसके आगे की बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इसके आगे क्या क्या है, डक्ट सिस्टम क्या होता है और टेस्टिस में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं. आप आए, बने रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. लाइक ज़रूर करें, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और सबसे बड़ी बात, सुरक्षित बने रहें. ठीक है, तो आज के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद. गुड बाय.